So guys, today I have come to see the exhibition. Before this, you have to know why I came to see the exhibition, how I came. So let's know. I have received invitation from the college. All students, please attention. Tomorrow all FYDS students will have to reach VJTI Matunga East at 10 am to visit ISRO space exhibition. So here I am. Cause who have not subscribed my channel, subscribe, like, and yes, don't forget to press the bell icon. Let's start. Now it's going to be a lot of fun. Friends, watch the video till the end. Web. My kid, my kid was participant in like about robotic team. That they do the robo work with that. So that's why so that's why I come to know about this competition. I was not aware that this type of competition also happens. There are many competitions, not just Only in the engineering. yeah. There's a there might be something for young. Anyone gets hospitalized, then they have to be dependent on other people to move them, right? So we have made this joystick robot. I'll show how it works. So you can move forward, backward, left and right by your own. So this robot reduces the dependency level. You'll try? Isn't it working? Wait. Excuse me. Yeah, try. Move it backwards. Wait, I'll show. You have to move it slowly. Yeah, Will get the minerals and the energy from that. We used to get the minerals. This is a drawing robot. The satellite will give the energy Wait, I'll to show. produce new satellites. So it will exponentially give it. So then after It's a drawing robot. See? It's for small kids, you know. It's very fun to do such activities. Yeah, like it works on the principle of whenever this motor moves, it vibrates. Due to vibration, this plate also moves, and hence drawing. but it is a random drawing. Yeah, it's random. But Start. So hello everyone. So the main aim of our project is to not depend on minerals and natural resources for the generation of electricity, because minerals are getting depleted day by day and pollution is also increasing. So we came up with the idea in which there would be a satellite, there would be solar panels all around it. So the satellite would be in huge number revolving around the sun. So after revolving around the sun, it will receive the solar energy and convert the energy to laser form. The laser form of energy would be then transmitted to various space stations. On the space station, there will be a laser receiver. The laser receiver would receive the laser and convert the laser into electromagnetic waves or microwaves, which would then be amplified and transmitted to the earth. On Earth, there would be a device called Rectana. Rectana is a device which converts electromagnetic waves like television waves, radio waves, microwaves into electricity. So this would form a cycle of permanent and constant electricity, which would be clean and green, which would not use minerals, in fact would save them, and would also reduce the pollution to up to 0. So, if this is successfully implemented in real life in the future decades, even 1% of the sun's energy could be converted to up to that much amount of electricity, which would be amplified and used to supply the entire earth with electricity, so that there would be no shortage of electricity in the rural areas. Thank you. You should start Clap, with clap. your name. You know, I am Abhay Mistry, like that. A competition called FRC, First Robotics Competition, which is going to be held in Turkey, which is regional.
It's going to be held next month. So what we're doing here is they gave us a series of challenges, 2 challenges. So this year is to pick up boxes and cones and to keep them in specific areas. So we are just displaying it here. So this what we're showing here, it's a gearbox. So this is a twosome gearbox which we are going to use to increase the torque and when we want to reduce the speed. So because these motors that we are using, these are called sim motors, they have a lot of speed, and since we are using chains as seen over there, it can damage the chains or the sprockets that we are using. So these gearboxes are there, which reduces the speed and increases the torque, which is perfect for a normal gearbox. So this is a workshop that we are holding right now, where you can make your own gearboxes. So would you like to try? We'll actually teach you how to build Yeah. And also if you see a car mechanism, I'm not going to put it now because this is a prototype. So if I keep this slanting and I fit the wheel in, Yeah. it will use a similar mechanism used in your drilling car. So would you like to try? Thank you so much. ओके, आपको ये लाइन में खड़े रह के कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा, थोड़ा बुरा लग रहा है। तो एग्जीबिशन अच्छा जा रहा है आपका कि ख़राब जा रहा अच्छा है? जा रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। चलो ठीक है। व्हाट्स योर नेम? मलिक। कौन सी कॉलेज से हो आप? एपी कॉलेज। ओके, अकबर बीरवाई कॉलेज। ओके ओके, ठीक है। पहली बार एग्जीबिशन देखने आए? फर्स्ट टाइम? ओके ओके, कैसा लग रहा है? Very good, interesting to get the knowledge about robotics and AML. तो आपने देख लिया अभी? Yes. काफ़ी कुछ देखा होगा। हाँ. ओके, अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है अभी आपको। आगे चल के आपको बहुत कुछ दिखेगा। फिर लास्ट में अपन बात करते, ठीक है? चुके हैं लाइन क्रॉस करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए। अभी हम ड्रोन के पास पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट थोड़ा बरोबर सांगितलंय। Rocket, huh? रॉकेट, दिस इज रॉकेट। What is this? This is दिस इज गोल्डन रॉकेट। no, this one. Nano reaction wheel. व्हाट इज दिस? Nano reaction wheel. They are written. नैनो। Hybrid navigation system. ओके, व्हाट इज दिस? स्मार्ट स्पेस रोबोट। ओके, सैटेलाइट बिगड़ गया तो उसको ठीक करने। खराब करने के लिए? ओके, नाइस। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस मैम? सैटेलाइट। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया होगा सैटेलाइट, और सैटेलाइट व्यू भी देख लेते हैं। ये अपना सैटेलाइट व्यू है। बच्चों को वीडियो बनाना मना है, तो आप वीडियो नहीं बना सकते हो, सॉरी। वाह, व्हाट अ क्लैरिटी। 4K। मूव। दिस इज रोबोट। वो होता ही नहीं है। रुक जा। गूगल ट्रेनिंग आने का है। फाइनली एग्जिट हो रहे हैं हम, ठीक है? आगे देखेंगे क्या होता है।
अभी कुछ लोगों से बात करते हैं। मलिक कैसा लगा आपको? I like the How you talks feel? and exhibition is very great. I'm helpful for it. I have got a very knowledge about the robot, dancing robot and everything. And the satellite also and the rocket, and the golden satellite, everything. It is good ओके for the children, science students. ओके नो प्रॉब्लम। वेरी बड़ा बाइक, स्पोर्ट बाइक है। R1250 है ये, BMW का मॉडल है ये, आप देख सकते हैं। वेरी नाइस। ये वैसे कार में चलता है ना, फिर बहुत मजा आता है। पकड़ एक वीडियो बना। चलो नहीं बनूंगा। तिथे ना दोन्ही साईडनी म्हणजे व्हॅलीज आहे. व्हॅलीजचं पाणी येतं म्हणजे खाली व्हॅलीमध्ये येतं, पण ना ते पाणी वाहून जाते किंवा इव्हॉपरेट होतं. म्हणून गव्हर्नमेंटने इथे बंडवल कन्स्ट्रक्ट केलं. बंडवल रिझर्वायर झाली आणि इथे साईडला दुसऱ्या साईडला ना 4 ते 5 गावं आहेत, मोठी गावं आहेत. आणि पावसाळ्यामध्ये ना इथे मॅडम एक रिक्वेस्ट आहे, हिंदीमध्ये सांगा ना। मराठीमध्ये होईल तुला हिंदीमध्ये परत सांग। मराठी इथे म्हणजे पावसाळ्यामध्ये यायला पाणी असतं. हिंदी तो हमारा प्रोजेक्ट है परकोलेशन पे। अभी अंबरनाथ में विलेज है, विलेज की मतलब जो अपर लेवल पे एक माउंटेन वैली टाइप है और उसके बीच में एक रिजर्वॉयर है, और रिजर्वॉयर का जो पानी है वो विलेजर्स को मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसके आगे एक बंड वॉल क्रिएट किया है ताकि वो पानी विलेजर्स को मिल सके। बट क्या होता है, जब समर सीजन आता है तो वो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है और विलेजर्स को पानी मिलता ही नहीं है। अभी उसका रीज़न क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट लेयर है जो ज़मीन का, उस पर ये इम्परवियस स्ट्रेटा है। इम्परवियस स्ट्रेटा क्या करता है, पानी को परकोलेट नहीं होने देता है ज़मीन के अंदर। तो पानी परकोलेट नहीं होता है अंदर, तो वो ऊपर ही रहता है। अभी ऊपर रहने की वजह से क्या होता है, जब समर सीजन आता है तो पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है, और उसी कारण से ये जो विलेजर्स हैं उनको पानी मिलता नहीं है समर सीजन में। अभी उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या किया हमने कि जो रिजर्वॉयर है उसके बीच में एक वेल डिग किया है, और वो वेल कितना डीप डिग किया है कि जब तक हम लोग हमारा जो म्यूरम जो लेयर है वो हमें मिल नहीं जाता। म्यूरम पे क्या होता है, जो पानी है ना वो स्प्रेड हो जाता है आजू बाजू, और हमने जो ये वेल जो बनाया है ना उसके अंदर हमने फिल्टर मीडिया भी लगाया हुआ है। फिल्टर मीडिया में क्या है कि जो लोवेस्ट लेयर है वो 50% कोल है, फिर उसके ऊपर 25% कोर्स एग्रीगेट है, 15% फाइन एग्रीगेट है, और 10% हमने वो वेल को खुला छोड़ा है ताकि वो पानी अंदर जा सके। अभी जब ये स्लाइटली फिल्टर होकर जो पानी म्यूरम के ऊपर जाता है ना, तो वो पूरा आजू बाजू के जितने भी विलेजेस हैं उनको स्प्रेड हो जाता है। तो उनको पानी समर सीजन में नहीं मिलता था, तो समर सीजन में भी उनको उनके हैंड पंप्स में, उनके वेल्स के अंदर पानी मिलता है, और बाकी जो विंटर सीजन है, रेनी सीजन में तो उनको पानी मिलता ही है। तो ऐसे ये एक इकोनॉमिक अप्रोच है पानी मिलने के लिए ये विलेजर्स को। ओके थैंक यू। I just keep my finger. वेट हाँ फ्रीजिंग All the three. कौन सा आपसे होना है, कौन सा लेंगे? 168 पक्का आ रहा है शुगर 168 167 to 168 ओके ना। कैसे वॉक करते हैं?
तो ये कैसे वर्क करता है? सो इट इज़ अ IR सेंसर। हाँ, तो कैसे काम करता है? तो इट इज़ अ IR सेंसर, इसका बैंडविड्थ है 700 to 1700 नैनोमीटर। हम लोग को रिसर्च पेपर से पता चला है कि SpO2 के लिए सुटेबल वेवलेंथ 600 to 800, टेम्परेचर के लिए 1200 to 1700, शुगर के लिए 800 to 1200 नैनोमीटर। तो हम लोग ने ये IR सेंसर ऐसा चीज़ किया जो कि तीनों ये बैंडविड्थ ब्रदर थोड़ा लाउडली। हाँ, तीनों वेवलेंथ कवर करेगा। और उसका हम लोग ने तीनों सेपरेट कैसे किया है? तो हम लोग ने ये है सिग्नल प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है LabVIEW करके, उसमें हम लोग ने अलग अलग बैंड पास फिल्टर यूज़ करके इसको फिल्टर अलग अलग लगा के उनको सेपरेट किया है, तो जिससे हम लोग को अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग ये वेरिएशंस मिल के अलग अलग आंसर है। नो, इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, इज़ 90% एक्यूरेसी। अगर मार्केट में हम लोग को लाना होगा तो इट शुड बी 95 to 97। वी आर स्टिल इन अंडर टेस्टिंग प्रोसेस, इसके लिए हम लोग लैपटॉप यूज़ करें। अगर हम लोग को मार्केट में लाना होगा तो इट शुड बी वेरेबल डिवाइस, तो हम लोग को प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा ऐसा। तो हम लोग स्टिल इन टेस्टिंग प्रोसेस में है। हाँ, बट इट इज स्टिल इन प्रोसेस, बट और इतना एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए हम लोग अभी तक मार्केट में नहीं ला सकते। तो वी आर स्टिल टेस्टिंग कर रहे हैं। What is the estimated time you all can bring it? सब कुछ नो आइडिया, सही पता नहीं सकते हम लोग का, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग इसका फाइनल प्रोजेक्ट है, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा उसका। ओके ओके, थैंक यू। अभी आप अपना सेलफोन रखोगे ना तो वो डिटेक्ट करेगा कि वो सेलफोन है, उसमें अगर बॉटल रखोगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि वो बॉटल है। ऐसे वो अलग अलग सारी डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें वो डिटेक्ट करेगा। इसका रेंज बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो बंदे खड़े हैं उन लोग को भी वो डिटेक्ट इजीली कर सकता है। अगर आप छाड़ोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी जो सारे लोग हैं सबको डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। हाँ, इसमें हम लोग ने अभी फेस रिकग्निशन का अचीव कर लिया है। कैरस मॉडल करके उसमें रहता है, उसको ट्रेन किया जाता है पर्टिकुलर एक इमेज का, वो 500 पिक्स लेता है पर्टिकुलर पर्सन का। हाँ, ये भी अभी आप जो देख रहे हो ना, आपको ऐसा बहुत लेटेंसी इसका लो लग रहा रहेगा। वो हर एक मिनी सेकंड का आपका फोटोज ले रहा है और उसको कंटिन्यूएशन में रख रहा है, तो उसको आपको एक एनिमेशन लग रहा है कि हाँ वीडियो है, लेकिन वो हर एक सेकंड आपका फोटो ले रहा है और फिर उसको डिटेक्ट कर रहा है। ओके, व्हाट इज दिस ब्रदर? व्हाट इज दिस? प्राइमरी पर हाँ, ये बैटरी है। बैटरी है, ये वर्क करेगा अभी? ये उड़ेगा? नहीं, अभी तो हम उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको लैंड मोड पे टॉटल करेंगे और उसका और एक कितना टाइम जाएगा इसको? 5 मिनट्स। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एप्पल है ब्रदर 5 मिनट में हो जाएगा ना? ओके, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर आता हूँ। This is the receiver. This is the IR sensor, the photo detector. It will be placed very close to the shaft of the machine. So shaft would be like this. Like this part will be there. The shaft will have about a red tape. So the number of times the tape will come in front of the detector, it would create the number of pulses, and those pulses will be sent forward to the encoder, and then through the transmitter circuit it would be transmitted at a frequency of 443 megahertz. Same will be received there. The receiver will have a decoder which would decode the data, and it will be forwarded to Arduino Nano circuit, which would convert the data into RPM. So wirelessly and in a contact-free manner, we can take the readings of machines or motors. करो। हाँ, सो ये एनालिसिस है G+14 बिल्डिंग का, ये उसका प्लान है। सो आपको जनरली एक आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम कि 2 कंपोनेंट्स मेजर होता है कि कंक्रीट और स्टील यूज़ करते हैं राइट कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सबको आइडिया होगा बेसिकली। सो ये हम लोग का प्लान है। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स 2 BHK ईच, ये 2 लिफ्ट है और ये स्टेयरकेस है। सो और इसका सेंट्रल लाइन प्लान हम लोग ने इसमें इनपुट किया है। सो ये 14 फ्लोर्स का जो सेंट्रल लाइन प्लान है वो सब सेम है, सबको दिखेगा। बीच में लिफ्ट है, इस पर हम लोग ने लोड्स अप्लाई किए हैं, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। सो मेजरली वी आर फोकस्ड ऑन अर्थक्वेक लोड। लाइक मुंबई जोन 3 में आता है, सो हम लोग ने वो फैक्टर्स कंसिडर करके IS कोड के हिसाब से इस पर वो लोड्स अप्लाई किए। और वो लोड्स अप्लाई करने के बाद ये जो एनिमेशन दिख रहा है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब लोड्स अप्लाई करने के बाद इतना बिल्डिंग डिस्प्लेस होती है
कि अर्थक्वेक आने पे। सो मतलब ये एक्चुअल बिल्डिंग का है, हाँ। उसमें फिर वो मटेरियल्स एंड ऑल वो कैसा उसके अकॉर्डिंग आप M30 वो पुट किया कंक्रीट M30 और स्टील FE500 लाइक अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, कंक्रीट के लिए भी स्टील के लिए भी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ मैम जरा क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक हमने इसमें मिनिमम M30 यूज़ किया और उसके नीचे यूज़ करते नहीं है बेसिकली। M20 और M25 एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर या फिर 1-2 माले का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जो हमने M30 यूज़ किया है वो भी बहुत ऐसा मिनिमम वाला है, नहीं तो आजकल M40 यूज़ करते हैं। तो हमने M30 यूज़ किया है और FE500 स्टील है, M24 यूज वो नहीं यूज़ किया। करके ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको लोड्स अप्लाई करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे इतना डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है जो है 88 mm टॉप फ्लोर पे 88 mm है। और वैसे ही वाई एक्सिस पे टॉप फ्लोर पे 11 mm है। तो इसका परमिसेबल लिमिट 168 mm आता है अकॉर्डिंग टू IS कोड, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से। सो मैक्सिमम अगर मैंने स्टील मटेरियल चेंज किया तो हाँ, सो वो डिपेंड करता है ना। हम लोग ने इसमें लाइक कॉस्ट कटिंग किया है, सबसे कम मटेरियल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करके बिल्डिंग लाइक सो उससे कॉस्ट बचता है, टाइम भी बचता है। ये हमने ऐसे सोच के बनाया कि नहीं, शैड प्रो रीइंफोर्समेंट के लिए मेजरली यूज करते हैं, ईटैप्स पे एनालिसिस लोड्स के इसमें। ओके थैंक यू सो मच। बात कर लेंगे भाई, इसके बारे में कुछ बताएंगे? This is natural aggregate and this is artificial which we get from a demolition building। मतलब जो ये बिल्डिंग गिराते हैं ना उसके बाद जो वेस्ट बनता है ना तो ये दोनों मतलब ये 70% यूज़ करके और ये 30% यूज़ करके हम यहाँ पे बाइंडर कोट्स मतलब सरफेस लेयर के नीचे रोड के नीचे जो लेयर रहता है ना उस पर यूज़ करेंगे, जो कि सरफेस लेयर और बेस कोट्स को बाइंड करेगा उसके, क्योंकि नेचुरल एग्रीगेट कम होते जा रहा है ना, तो इसलिए हम 30% ये यूज़ करके उसको, और ये लेयर ऐसा बनेगा लेयर मतलब 10 mm ये 10 mm ये और फिर बिटवीन हाँ बस इतना ही है। थैंक यू। This is mostly used for military or recreational purposes. It can also be used for farming purposes. We created it from the scratch, all the design and the calculations. It was made by the students of the diploma college. We created for the competition of quad top and this is a competition in which all the degree colleges from India participate and ours was the only diploma. We managed to take the 4th rank. कैसा फील हो रहा है आपको बैठकर उसके ऊपर? बेटर फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, थैंक यू ब्रदर। गाइस सब कुछ हो गया है, अभी सब सारा एग्जीबिशन ख़त्म होने वाला है अभी, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इससे अच्छा कुछ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।